ओके ओके ठीक है। लेट मी गो अहेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आरटी। ठीक है, हाउ इट इज, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द करंट एग्जाम पैटर्न, व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज इन अपकमिंग डेज, and to be honest, the language for the classes as well as in RT, it will be English only. ठीक है, I know many of us from North India, and you can understand Hindi as well. So I'll keep the language changing in between Hindi and English. Actually, I'm also from Bihar, and my Hindi is pretty good. But right now, if I say frequent, if I say, to be honest, my English is also good, and I can take complete class in English. And especially, I prefer the classes in English only. The main thing why I keep the language English is behind the logic of RT. The RT is a main focus in front of pilots, not for us. They are looking it as a serious concern and they are using it frequently. और पायलट के लिए एक टेस्ट होता है स्पेशली इंग्लिश के लिए, ELP बोलते हैं उसको, इंग्लिश 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 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, सो इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कैन नॉट बी अ पायलट इन इंडिया। ठीक है, एंड if you are struggling with English, then you will little suffer in RT, trust me. ठीक है, so you need to practice from day first, huh? While going through the lectures, while undertaking the class regular, if on any topic, if it is necessary, you can always ask me to put on Hindi. ठीक है, और मैं भी मिक्स करके इंग्लिश हिंदी मिक्स करके ऐसा पढ़ाऊंगा, so that it will be easy for you always. But always try to stick on English. ठीक है, if your English is weak, don't worry. I had many students, and I had seen many of the juniors whose English is not very much good, but I am giving some grammatical tips to improve your English. Otherwise also, RT में आपको normal gossip या communication नहीं करना है. There are certain set of phrases, certain set of language, उतना ही बोलना होता है. तो उतना जितना आपको आरटी के आंसर के लिए चाहिए, उतने सारे इंग्लिश को अगर आप समझ लोगे तो आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट यस, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, देन यू विल हैव better understanding, you will have a good approach. But if your English is not very much good, if you are not pretty good in English, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी. डन. नाउ आई एम Yes, sir. शेयरिंग द स्क्रीन. Please confirm if my shared screen is visible. Right, what I am sharing my computer now. Tell me if it is visible to you. यस सर। Yes, sir. Visual. दिख रहा है? Okay. So now let me come to the current exam pattern, whatever they had given the scenario. Till now, this exam is being conducted by WPC. ठीक है? Wireless Planning and Coordination Wing. That comes under Department of Telecommunication, under Ministry of Communication. Ministry of Communication is as a whole. ठीक है, under them they had put Department of Telecommunication. ठीक है, telecommunication means दूर संचार, जिसे बोलते हैं टेलीविजन, दूरभाष. Similarly, telecommunication, दूर संचार, मोबाइल लोकेशन पे कम्युनिकेशन. You are sitting in Delhi, you want to contact Chennai, so telecommunication. So Department of Telecommunication, they are allotting the frequencies for radio telephony. So under them, Wireless Planning and Coordination Wing. ठीक है, under them this exam is being conducted till now. और इस एग्जाम का नाम होता है COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन इंडिया. इफ यू वांट टू ऑपरेट, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली. if you want to operate radio apparatus, ठीक है, which may contact ATC or which are having use in aeronautical communication, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए. प्रोफिशिएंट मींस यू आर हैविंग गुड कमांड, सो यू आर हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी. इन अदर वर्ड्स इसी को हम लोग बोलते हैं लाइसेंस. ठीक है, जो आरटी लाइसेंस बोलते हैं ना, द सेम थिंग इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, COP, या फिर आप इसको बोल लो आरटी लाइसेंस. ठीक है, अब
आपके पास आरटी लाइसेंस होगा तभी आप आरटी पे बात कर सकते हो, ये लिखा हुआ है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1954 में कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू कम्युनिकेट विथ एटीसी ऑन वायरलेस रेडियो apparatus। आप कॉल करके बात कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, बट आप वायरलेसली रेडियो का यूज करके एटीसी से बात नहीं कर सकते अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी नहीं है। टिल नाउ दिस एग्जाम वाज बीइंग कंडक्टेड 6 times इन अ ईयर। हर अल्टरनेट मंथ पे एग्जाम कंडक्ट होता था, ठीक है। एंड एज पर आवर वेरी पॉपुलर मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इन दोनों इन चारों सिटीज में एक बार एग्जाम कंडक्ट होते थे, हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक बार। दिल्ली में सेम एग्जाम 2 बार कंडक्ट होते थे इन अ ईयर, 2 times इन अ ईयर इन दिल्ली। आई थिंक they'll give the opportunities for दिल्ली twice in a year now also। जब डीजीसीए के अंदर में आएगा तब भी शायद वो 2 बार ही कंडक्ट करवाएं दिल्ली में, बिकॉज दिल्ली इज हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, वन इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर। चेन्नई के अंदर में ही एक दूसरा सेक्शन आता था हैदराबाद का। हैदराबाद में भी आरटी एग्जाम कंडक्ट होता था, बट उसका रीजनल लाइसेंसिंग ऑफिसेस ये चेन्नई के अंदर में ही रहता था, ठीक है। सो यू कैन से चेन्नई 2 times, दिल्ली 2 times, मुंबई एंड कोलकाता 1 time ईच। टिल नाउ एग्जाम पैटर्न इज सच। तो अभी अपने पास डब्ल्यूपीसी के अंदर में एग्जाम देने का 2 मौका बचा हुआ है। वंस इन अ मुंबई, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 7th of April। दिस इज द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम डेट। डोंट कंफ्यूज कि 7 अप्रैल को ही एग्जाम होगा। एग्जाम 7 अप्रैल से लेके 1.5 महीने 2 महीने तक चल सकते हैं। एंड नेक्स्ट जून में चेन्नई, ठीक है। तो ये तो हुआ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ दे आर कंडक्टिंग। The latest modification has came into RT exam pattern that DGC is going to be take full command of RT examination. Now this examination will be conducted by DGCA. तो DGCA ने क्या किया सबसे पहले? We'll open the English portion of this notification. This notification has came recently by DGCA. तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले? इन्होंने एग्जाम के फीस को सबसे पहले बढ़ा दिया, ठीक है। अभी तक जो आप एग्जाम फिलअप करते थे थ्रू सरल संचार, दिस वाज बीइंग कंडक्टेड विद इन 500 रुपीज ओनली। नाउ यू हैव टू पे अ टोटल सम ऑफ 7500। फीस सीधे 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इनके कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अभी डीजीसीए आफ्टर जून, अगस्त के महीने से कहां पे एग्जाम कंडक्ट करेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस है, ये सब अभी डीजीसीए ने अनाउंस किया नहीं है, ठीक है। बट स्टिल वी हैव 2 times टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। तो डीजीसीए जैसे ही एग्जाम पैटर्न अनाउंस करेगा, एग्जाम टाइप अनाउंस करेगा, एग्जाम सिटीज अनाउंस करेगा, विल कवर अप दैट लेटर। टिल नाउ हमको बस जो करंट डब्ल्यूपीसी का एग्जाम पैटर्न है उसको समझना होता है, राइट। For that, I'll take you to the slate. ठीक है, I'll take you to the whiteboard. Now let me know if this whiteboard is visible to you. Is it visible to all? Yes, sir. Okay. ठीक है. Just stick to the board. ठीक है. Some of the information I'm going to write. अगर आपको confusion होता है, you can stop me then and there and you can ask any query. Till now, WPC के अंदर में जो एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है, that is being conducted in 2 parts, ठीक है, part 1 and part 2। अब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपको एक ही दिन में देना पड़ता है। सपोज आपका एग्जाम डेट आ गया 7 अप्रैल 2025, तो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक ही दिन में देना पड़ेगा। एक ही दिन में देना पड़ेगा प्लस विद इन 1 आवर ऑफ टाइम स्पेन ओनली। आपका जैसे ही पार्ट 1 क्लियर होगा आपको पार्ट 2 के लिए भेज दिया जाएगा। 15 से 30 मिनट का ब्रेक रहेगा मैक्सिमम, या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का ब्रेक, उससे ज्यादा ब्रेक नहीं रहेगा। तो जैसे ही आपका पार्ट 1 क्लियर होगा आपको पार्ट 2 के लिए भेज दिया जाता है उसी टाइम पे। प्लस
इस एग्जाम में अभी तक कोई भी एग्जाम क्रेडिट नहीं है जो कि डीजीसीए वाले में होगा। एग्जाम क्रेडिट का मतलब, अगर आपने एक बार पार्ट 1 पास कर लिया, ठीक है, पार्ट 2 में फेल हो गए, तो अगली बार आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने पार्ट 1 पास कर लिया तो दूसरी बार सिर्फ पार्ट 2 दूंगा, ऐसा नहीं है। बट डीजीसीए में ये फैसिलिटी लाई गई है कि अगर आपने एक बार में पार्ट 1 पास कर लिया है तो पार्ट 2 देने के लिए आपके पास 3 मौके हैं। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार कंडक्ट करा लो, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार कंडक्ट करवा लो, तो 3 बार आप प्रैक्टिकल दे सकते हो पार्ट 2, और थ्योरेटिकल ओनली 1 टाइम्स। ये डीजीसीए का प्लान है, ये आएगा, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए डब्ल्यूपीसी इज सेइंग कि कोई क्रेडिट नहीं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पास करना पड़ेगा हर बार। एक में भी फेल हुए, लटक गए। हालांकि एक में फेल होने की गुंजाइश है ही नहीं। अगर आप पार्ट 1 पास हुए तभी आपको पार्ट 2 में भेजा जाएगा। पार्ट 1 आप क्लियर नहीं कर पाए, आपको पार्ट 2 के लिए भेजा नहीं जाएगा, ठीक है, सिंपल। अभी सबसे पहले समझते हैं कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, फिर हम लोग चलेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, ठीक है। नाउ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो आपका होता है दैट इज ऐसे आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग मतलब आपको आंसर लिखना पड़ेगा, प्लस एट द सेम टाइम आपको आंसर बोलना भी पड़ेगा। ऐसे राइटिंग और प्रोनाउंसिएशन पार्ट 1 में ही, ठीक है। आपको आंसर लिख लिख के बोलना है, इन द सेंस यू कैन से कि आपको आंसर राइटिंग और आंसर का प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग साथ ही साथ करना है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसके लिए आपको आधे घंटे का एग्जाम स्लॉट मिलता है, 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। विल लुक एट द पेपर। पार्ट सेकेंड आपका रहता है ओरल, कंप्लीटली ओरल या वाइवा, ठीक है। ये भी आधे घंटे का एग्जाम होता है। 15 मिनट के लिए आपके एग्जामिनर रहेंगे द पर्सन विच बिलोंग्स टू डीजीसीए, 15 मिनट के लिए आपके एग्जामिनर रहेंगे द पर्सन विच बिलोंग्स टू डब्ल्यूपीसी। तो पार्ट 2 जो आपका ओरल होगा उसमें आपके 2 एग्जामिनर, एक डीजीसीए से, एक डब्ल्यूपीसी से। ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स दे विल टेक द टाइम, ठीक है। सो दैट इज फॉर ओरल। नाउ we'll just have a look on sample paper of part 1 कि how it actually looks and how it actually works so that you can understand कि एग्जाम होता कैसा है। Now you can see this is the sample paper of part 1, ठीक है। this is the sample paper of part 1। पार्ट 1 में आपको एज आई सेड ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, आधे घंटे। 5 मिनट्स आपका रोल नंबर, मोबाइल नंबर, योर अटेंडेंस, योर डेली सिग्नेचर, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने में ही 5 मिनट चला जाएगा। तो एग्जाम के लिए आपके पास एक्यूरेट टाइम बचता है 25 मिनट्स। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है पार्ट 1, ठीक है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहता है, आपका एक फ्लाइट प्लान रहेगा कि आपका एयरक्राफ्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे फ्लाई कर रहा है। नाउ टेल मी कि पॉइंट ए से लेके बी तक जाने में जितने सारे रेडियो गॉसिप, गॉसिप मतलब बातचीत, जितने सारे रेडियो गॉसिप पायलट को करने पड़ते हैं, आप उसका प्रोनाउंसिएशन करो, आप उसका आंसर करो। तो पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन होता है, पायलट प्लस एमी कैंडिडेट और whomsoever want to appear for the RT, जिसको भी RT का एग्जाम देने का मन हो, सबके लिए पार्ट 1 का क्वेश्चन पैटर्न सेम है। 5 क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऑपरेशन का रहेगा, ठीक है, कि आपका एयरक्राफ्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर करना है विद इन 25 मिनट्स, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन लिख लिख के आंसर करने वाले मिलेंगे, ऐसे टाइप। ऐसे का मतलब होता है आंसर राइटिंग। और जो आपका 5th क्वेश्चन रहता है, ये हमेशा, फिलहाल के लिए जो 5th क्वेश्चन रहता है, ये हमेशा आइदर फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, या ट्रू फॉल्स टाइप मिलेगा, ठीक है, या यस नो टाइप मिलेगा, या फिर आपको किसी का फुल फॉर्म लिखना रहेगा, या फिर प्रोनाउंसिएशन रहेगा कि कोई सा सेंटेंस लिख देगा, बोलेगा बोल के बताओ। तो 5वां क्वेश्चन हमेशा इजी पड़ता है एमी कैंडिडेट को। क्यों?
क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स, यस नो, ट्रू फॉल्स, फुल फॉर्म बोलने जैसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये तो है क्वेश्चन नंबर 5 का। 100 मार्क्स जो आपको मिले हैं आउट ऑफ द टोटल, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन 5 20 नंबर का, क्वेश्चन 4 20 नंबर का, 3 2 1 ऑल बिलोंग्स टू 20 नंबर ईच। अभी क्या होता है, कभी कभी इन क्वेश्चन नंबर 1 ओनली दे विल गिव 3 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 2 दे मे गिव 2 more questions. So these 20 marks will be distributed through these 3 questions. अब इसमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक 10 नंबर का हो, दूसरा 5-5 नंबर का है, एक 8 नंबर का है, दूसरा 8 नंबर का, तीसरा 4 नंबर का। ठीक है, दे आर गिविंग देयर इंटरनली प्लानिंग, बट पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 विल कवर 20 मार्क्स। ठीक है, पार्ट 1। अभी देखो मेन थिंग, अभी तक जो हम एग्जाम देते हुए आ रहे हैं, या अब तक वट एवर द एग्जामिनेशन टाइप वी हैव फेस्ड, what we have seen, suppose I know the answer of question number 3rd, I know the answer of question number 5 4, can I answer question number 5 first, then I can move to question number 1? अभी तक हमने एग्जामिनेशन में ऐसा ही देखा कि जो आता है वो करो, जो नहीं आता वो बाद में करेंगे, बट इन आरटी दिस इज नॉट permitted. You need to answer in ascending order. If you don't know the answer of question number 1, you cannot move to question number 2nd. If you don't know the question number of 2nd, you can't go to 3rd, can't go to 4, can't go to 5. ठीक है, so we know the question answer of question number 5, but we cannot directly jump over it. We need to answer in ascending order, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, then 5th only. ठीक है, no jumping of the answers. Again, the next very important thing, whatever the examination we have faced till now, what we have observed कि एक क्लास में 20-30 कैंडिडेट रहेंगे और एक इन्विजिलेटर रहेगा, राइट, एक एग्जामिनर रहेगा, बट इन आरटी वन कैंडिडेट विल बी अलॉटेड विथ वन एग्जामिनर, हर एक कैंडिडेट के लिए एक एग्जामिनर, फॉर ईच इंडिविजुअल कैंडिडेट देयर विल बी वन एग्जामिनर, एंड एक बार में मैक्सिमम 6 से 8 स्टूडेंट का एग्जाम होता है एक बार में। जो आधे घंटे का टाइम फ्रेम आपको दिया गया है, इसमें 6 से 8 स्टूडेंट रहेंगे। आप फ्रंट फेसिंग करके बैठे रहोगे, एग्जामिनर कैन सी यू फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, दे कैन सी यू फ्रॉम बिहाइंड, आपका फेसिंग इधर है, एग्जामिनर भी आपके अपोजिट फेस करके बैठा है, मतलब वो आपको पीछे से ऑब्जर्व करेंगे। सो किसी भी टाइप का चीटिंग, किसी भी टाइप का यू कैन से फ्लूक्स, मतलब तुक्का लगाना, किसी भी टाइप का कॉपीराइट, कॉपी करके या किसी का सुन के आंसर करना, दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, बिकॉज 1-to-1 एग्जामिनेशन इज देयर। हर एक स्टूडेंट को एक एग्जामिनर मॉनिटर करेगा, तो 1-to-1 मॉनिटरिंग तो बहुत इजी होता है, उसमें किसी भी टाइप की गुंजाइश है ही नहीं, किसी भी टाइप का चीटिंग नहीं कर सकते। और एक बार में 6 से 8 स्टूडेंट का एग्जामिनेशन होता है, एंड इन अ सिंगल डे 60 to 120 स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा का एग्जामिनेशन नहीं होता है एक दिन में। टोटल 5000 के आसपास फॉर्म भरा जाता है आरटी का, 5000 से 6000 आरटी का फॉर्म फिलअप होता है। इसीलिए जो आपका एग्जाम डेट आता है वो एक दिन में नहीं रहता है, थ्रू आउट द मंथ चलता है। सपोज अभी दिल्ली का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रहा है फ्रॉम द 5th मार्च, तो वो चल ही रहा है, वो सॉरी 5th फेब से जो हो रहा है कंडक्ट, वो जाएगा 30 मार्च तक, 20 मार्च तक जाएगा। ठीक है, पूरा मार्च के एंड तक जाएगा, तब तक में आपका मुंबई सेशन का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके क्लोज भी हो जाएगा। तो पूरा 1.5-2 महीने तक एग्जामिनेशन होते हैं आरटी का। क्यों? क्योंकि एक बार में मैक्सिमम 60 स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द पार्ट 1। नेक्स्ट इज पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास दो एग्जामिनर, एक डीजीसीए से, दूसरा डब्ल्यूपीसी से। डीजीसीए आपसे रूल्स रेगुलेशंस के रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा और डब्ल्यूपीसी आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ जो पार्ट 1 का एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो पायलट हो या एएमई या कोई भी, क्वेश्चन सेम रहेगा। आपको एक
पायलट के ऑपरेशन जितना समझ होना चाहिए। ठीक है, आप पार्ट 1 में एज अ पायलट एग्जाम दे रहे हो, भले आप एएमई हो, भले आप कोई भी नॉन एविएटर बिगिनर्स हो, बट आप पार्ट 1 के क्वेश्चन में एज अ पायलट बिहेव करेगा। क्वेश्चन सेम रहेगा कि पायलट का क्या रोल है। बट इन पार्ट 2 द मोमेंट यू विल से कि आई एम नॉट फ्रॉम फ्लाइंग बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम एएमई, तो उनका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो जाता है। पार्ट 2 में जैसे ही आप बोलोगे एएमई, आपको ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, फ्लाइंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बेसिक ऑपरेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो कई बार आप अपने सीनियर से या अपने आसपास के लोगों से सुन सकते हो कि ऑपरेशंस के भी क्वेश्चन मेरे से पार्ट 2 में पूछा। नहीं, वो कोर ऑपरेशन के क्वेश्चन नहीं है, वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि एक इंजीनियर जब फील्ड पे अवेलेबल रहता है तो उसको उतनी समझदारी होनी चाहिए, उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं फॉर पायलट्स एंड एएमई, क्लैश करते हैं। बट पार्ट 2 बी रेस्ट एश्योर्ड, अगर आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो तो आपसे इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एंड पार्ट 2 में भी समहाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग एन एग्जाम ऑफ 100 नंबर्स ओनली। तो 100 नंबर का पार्ट 1, 100 नंबर का पार्ट 2, पासिंग मार्क्स इज 50%। एंड ट्रस्ट मी, इसमें किसी भी टाइप का कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है कि आपको 70 नंबर लाना था, 72 नंबर लाना था, 75, 80। नो, इफ यू स्कोर 50 यू विल बी ट्रीटेड एज पास। ठीक है, इफ यू हैड स्कोर 50 यू विल बी ट्रीटेड एज पास। नो पार्शियलिटी, नो कट ऑफ, नो रैंकिंग, नथिंग। एंड इन पार्ट 2 ऑल्सो 50 नंबर का मार्क्स रहेगा along with DGCA, 50 नंबर का मार्क्स along with WPC। if you can score 25-25 और if you can score 20-30 चलेगा, 45-15 चलेगा। टोटल अगर आप 100 स्कोर करते हो कंबाइनिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यू विल बी ट्रीटेड एज पास। इसमें किसी भी टाइप का रैंकिंग कट ऑफ नहीं बनता है। ठीक है, so this one was all about part 1 and part 2. Now you can let me know if you have any other confusion other than this, or if you have any other doubt. ठीक है, सर आई हैव हर्ड दिस, आई केम टू नो दिस, या फिर मैंने ये सुना, ऐसा सुना, या आई हैव बीन इनटू एग्जामिनेशन फर्स्ट, आई हैव फेस्ड दैट। इस टाइप का अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन लेट मी नो। Yes, am I audible now? Yes, sir. Sir. अभी तक जो मैंने बताया वहां पे मैं ऑडिबल था या म्यूट भी हो गया था? नहीं सर, ऑडिबल थे। Means complete part 1 and part 2 examination section you have understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any other doubt regarding part 1 and part 2? We have new candidate, we'll introduce with them also, and we can ask if I had made clear or if he knows something. Anything about part 1 and part 2? किसी भी टाइप का डाउट आपने किसी से सुन रखा हो, या कई बार हाइप रहता है मार्केट में कि आरटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट बहुत कम है, बहुत टफ है, उसके पे भी आएंगे हम लोग, धीरे धीरे सब कुछ कवर अप करेंगे। ठीक है, एनीथिंग फ्रॉम यू 3 कैंडिडेट? No, sir. No, sir. ठीक है, we have Sumit in the lobby. Sumit, can I have your introduction? Yes, if I'm audible to you, can I know about your education background so that I can brief something about you or I can plan something for you? Okay, doesn't matter. Anyhow, this video will be put up on all groups for the introduction section. Let me invite a maximum number of candidate who can come there or we can join here. Okay, for the RT, because the opportunity is going to be limited. As I told, कि
डीजीसी जब एग्जाम कंडक्ट करेगा, पता नहीं शुरू में क्या देगा रिजल्ट, एंड मेनी ऑफ कैंडिडेट कैन मिस द अपॉर्चुनिटी इन अपकमिंग ईयर्स। बहुत सारे टाइप ट्रेनिंग होंगे, बहुत सारे एयरलाइनर्स में, ठीक है, खास करके एयरलाइनर्स, वो लोग तो इतने ज्यादा इंजीनियर्स बनाएंगे ना, यू विल बी कंफ्यूज्ड कि जितना हम लोग एएमई फील्ड को अभी तक कोसते हुए आ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग लाइसेंस वेरी इजीली, right? What the examination pattern I had passed, I had to get 5 years of experience to get the license, but for you guys, newcomers, 2 years only, that is much enough. 1 year में CAT, you can release the aircraft, you can earn 90 110 in Indigo or Akasa. There are many airliners, and in a 2 years of maintenance experience, you have been type rated to Airbus, Boeing. They'll definitely give you around 1.5 1.8 to you, okay? Because after license they are not going to reduce the amount for salary, okay? What they'll give you more opportunity. They have ordered more of the aircrafts, okay? So we need to take this opportunity from ahead, ठीक है? तो अभी तक हमने तो एग्जाम के बारे में बताया कि कैसा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का एग्जामिनेशन है. अगेन आई विल पुट दिस रिकॉर्डेड लेक्चर टू ऑल ऑफ द ग्रुप्स so that maximum can be invited. Now let me tell about myself and about the institution, okay? To be honest, I am not here to promote myself, especially I had signed the code of conduct of Airworks, so I cannot disclose my current position or anything, but I'll give a simple rough idea. Especially आई डोंट थिंक कि कोई मेरे पे कॉपीराइट भी मारेगा कि मैं एयरवर्क्स का नाम यूज करके ऐसा खुद को प्रमोट कर रहा हूं. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट यस, आई हैड टू से आई एम वर्किंग इन एयरवर्क्स इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन जनरल एविएशन एमआरओ, ठीक है, नॉट बोइंग एयरबस. दिस इज जनरल एविएशन वेयर ग्लोबल बम्बार्डियर B200 and anything, and I am a type rated type trained AME, not got the license yet. After the license, I don't think I'll have a time to conduct the classes, ठीक है? तो जब तक लाइसेंस नहीं है, जब तक मेरे पास टाइम है, आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है? फीस आई हैड पुट फॉर द 1 month सिलेबस, ठीक है? 1 महीने का क्लास है, पूरा का पूरा, नो सैटरडे नो संडे, ठीक है? एंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इज कौशल्य एकेडमी. द फीस फॉर द syllabus is 4,500. Comparatively, this is very much low in compare with any kind of institution you have seen or any kind of institution you can inquire. आप कहीं भी इंक्वायरी कर लो, 4,500 में 5,000 में आरटी कोई नहीं पढ़ाता. मिनिमम आपको 15,000 से शुरू करेगा, 10,000 से नीचे से तो पत्ता तक नहीं हिलाता कोई, ठीक है? तो कहीं भी आपको 10,000 से क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी. और आई हैव 2 or 3 कैंडिडेट्स जिन्होंने थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाए विद प्रीवियस ट्यूटर्स एंड ऑल, कि सर पैसा ले लिया, प्रैक्टिस नहीं करवाया और टाइम नहीं दिया क्लासेस पे. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, इफ आई से, आरटी का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है कि उसको 1 month भी टाइम लगेगा, अगर आप एक अच्छे डेडिकेटेड कैंडिडेट हो तो, ठीक है? अच्छे और डेडिकेटेड कैंडिडेट का मतलब, अगर आप खुद से एफर्ट डालोगे तो 15 दिन से ज्यादा का सिलेबस नहीं है. बट आई कैन नॉट कंप्लीटली बेट ओवर यू, ठीक है? मैं आपको आपके पेस से नहीं जाने दे सकता, अदरवाइज फिर क्या मतलब रह गया कोचिंग क्लास ज्वाइन करने का? अगर आप खुद से ही प्रिपेयर करके सब कुछ खुद से ही कर लोगे तो मेरे गाइडेंस का क्या मतलब है, ठीक है? फॉर दैट दिस इज अ सिलेबस ऑफ 25 लेक्चर्स. 25 लेक्चर आपको अवेलेबल रहने पड़ेंगे, ठीक है? आउट ऑफ दिस, you can see, if I show the class slide to you, in RT there are not more than, ठीक है, this is my class slide what I used to share in the class, जिसका हेल्प लेके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं. you can say class note or my hand notes, ठीक है? आप देख सकते हो, लास्ट टॉपिक है अराइवल रिपोर्ट एंड टॉपिक नंबर है 20, टोटल पेजेज है 32. तो 20 से ज्यादा टॉपिक नहीं है, 30 से ज्यादा क्लास स्लाइड नहीं है अपने पास, ठीक है? और 25 डे से ज्यादा का लेक्चर नहीं है, ठीक है? यू कैन सी 25 डेज का लेक्चर है. उसमें भी आप देखोगे, जस्ट हैव अ लुक, आफ्टर लेक्चर 8 9 एंड 12 यू कैन सी डेली हमने एक एक घंटा टाइम रखा है प्रैक्टिस के लिए. यू कैन सी
मॉक प्रैक्टिसेस, ठीक है, प्रैक्टिस। तो यू कैन सी with practicing daily 1 hour, ठीक है, I can complete or we all together can complete the syllabus in 25 days, ठीक है। तो डेली 2 घंटे का टाइम, 25 डेज का लेक्चर है। अगर आप इतना स्पेंड करते हो, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू क्लियर द आरटी इन योर सिंगल अटेम्प्ट, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर हर कोई ट्यूटर, हर कोई टीचर तो यही बोलता है कि सिंगल अटेम्प्ट में कर लोगे, सिंगल अटेम्प्ट में कर लोगे, क्यों नहीं कर पाता है, ठीक है। द मेन थिंग बिहाइंड द आरटी इज 1 month डेडिकेशन, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल टू ऑल द बिगिनर्स, अगर आपके पास 1 महीने का डेडिकेटेड टाइम नहीं है, अगर आप 1 महीना आरटी पे नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो आई कैन नॉट एश्योर योर रिजल्ट, ठीक है। मैं अपने तरफ से आपके एश्योरिटी नहीं दे सकता रिजल्ट की। तब वो आपके ऊपर बात आ जाती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो कि आपने 10 दिन पढ़ा और आरटी निकाल लिया, ठीक है। दिस इज अप टू यू। बट अगर आप 1 महीने का डेडिकेटेड टाइम डेली 2 घंटा इन इवनिंग, ठीक है, अगर आप दे सकते हो तो आपका आरटी का रिजल्ट होगा। ट्रस्ट मी, ये इतना भी टफ नहीं है। सबसे टफ पड़ता है प्रैक्टिस, ठीक है। आई कैन नॉट से अबाउट ऑल अदर ट्यूटर्स और एनीवन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप प्रैक्टिस से थोड़ा सा भी जी चुराओगे, थोड़ा सा भी टालोगे मामला कि छोड़ो ना, प्रैक्टिस नहीं करते, आपका रिजल्ट वहीं लटकता चला जाएगा। इसीलिए मैंने अपने क्लास में मॉक प्रैक्टिसेस को एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। मैं छोड़ता ही नहीं हूं कैंडिडेट को। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप देखोगे जितना प्रेम से मैं आज बोल रहा हूं विथ नॉर्मल गुड्स इंग्लिश एंड कंप्लीट हिंदी सेंटेंसेस, मेरा टोन चेंज होता रहेगा। मैं आपके ऊपर आई कैन नॉट से शाउटिंग, बट आई विल बी लिटिल रूड टू यू, ठीक है। मैं बिना प्रैक्टिस के किसी कैंडिडेट को छोड़ता ही नहीं हूं। भले आपका खुद का कैपेसिटी क्या है, आपका क्या प्लान है, आपके गोल्स क्या है, आई कैन नॉट डिसाइड दैट, इट इज अप टू यू। बट प्रैक्टिस इज इन द क्लासेस डेली, ठीक है। फॉर दैट आपको डेली रात 9 से 11, ठीक है, कंसिडरिंग द टाइम ऑफ ऑल अदर एविएशन वर्कर्स, ठीक है, जिनका जनरल शिफ्ट रहता है डेली, तो मैंने रात में 9 से लेके 11 बजे तक डेली 2 घंटे का क्लास रखा है ऑनलाइन। Every lectures will be recorded. So somehow, if you are working in shift, if you are working in uh, 2 day 2 night वाला shift ये इंडिगो, you can cover up there, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका 2 दिन का लेक्चर लैप्स हुआ है और अगर आप तीसरे दिन प्रेजेंट रहे हो, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी बिग लॉस, ठीक है। आई ट्राई फॉर एवरी कैंडिडेट। अभी तो कितने सारे शेड्यूल एयरलाइनर्स के कैंडिडेट ने हमारे यहाँ से कोचिंग लिया और कंप्लीट किया। तो तीसरे दिन अगर आप प्रेजेंट हो तो आपका 2 दिन का लॉस कोई ज्यादा लॉस नहीं है, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर आप तीसरे चौथे दिन भी बंक मारना शुरू कर दिए या क्लास में एब्सेंट करना शुरू कर दिए, दैट इज गोइंग टू बी लॉस फॉर यू, ठीक है। तब आपको नहीं समझ में आएगा और यहीं से आपका डिस्टेंस बनता चला जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग 1 month डेडिकेटेड टाइम, ठीक है। इफ यू आर रेडी टू गिव, योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी फॉर श्योर, ठीक है। फ्रॉम माय साइड, अभी तक आज तो मैं 2 साल से ऑलमोस्ट आरटी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मोर देन 2 years। दिन दिस जून इट इज गोइंग टू बी 2 years फॉर श्योर, ठीक है। और मेरे क्लास में मैक्सिमम 4 से 5 कैंडिडेट आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई ऑफर द सिलेबस टू एएमई कैंडिडेट्स प्रेफरेबली। पायलट्स के लिए काफी सारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो कि उनको ग्राउंड क्लासेस भी करवाते हैं, पायलट्स के मॉड्यूल, तो वो लोग आरटी अपना उधर ही कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एएमई 4 से 5 कैंडिडेट रहते हैं, आपको प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आएगी। आई कैन लुक ईच वन ऑफ यू एंड दैट विल बी योर कंप्लीट सक्सेस, ठीक है। तो 4 से 5 कैंडिडेट एग्जाम देते हैं और हर बार 2 से 3 कैंडिडेट का हो ही जाता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी सक्सेस रिजल्ट फ्रॉम द पास्ट टू फ्यूचर एंड दैट आई एम फॉर श्योर। 2 से 3 कैंडिडेट का हर सेशन में होता है। आई ऑल्सो बिकम हैप्पी, ठीक है। कैंडिडेट आर ऑल्सो गोइंग विथ सम रिजल्ट, सो दे आर ऑल्सो फीलिंग हैप्पी आफ्टर द सेशन, ठीक है। इसके अलावा मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा,
आरटी का सिलेबस, पैटर्न, ठीक है, बुक कहीं भी डिफाइन किया हुआ नहीं है। कोई आपको बोलेगा आरके बाली पढ़ लो, कोई आपको कहीं से कोई ऑक्सफोर्ड का बुक लाके देगा, कोई आपको पायलट वाला बुक लाके देगा, नहीं। समवन विल से आरके बाली, राइट, बिकॉज यू ऑल आर बैचलर्स। तो कोई बोलेगा आरके बाली पढ़ लो, आपका आरटी निकल जाएगा। ओके, लेट मी शेयर टू यू। आरके बाली का नोट्स तो मैं भी देता हूं सबको, बिकॉज दैट बुक्स हेल्प्स फॉर पायलट। देखो फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, फॉर सीपीएल एंड एटीपीएल। कहां लिखा है आरटी? तो ये तो पायलट के लिए बुक है। तो ना किसी बुक को पढ़ने से कुछ होगा, ना ही किसी टाइप का एग्जाम पैटर्न या सिलेबस डब्ल्यूपीसी ने आज तक पब्लिश कर रखा है कि आपका हेल्प हो जाए। अगर आपको आरटी क्लियर करना है, ठीक है, आई वोंट से कि माइन, आप कहीं भी, ठीक है, किसी भी ट्यूटर को पकड़ के या अपने सीनियर को पकड़ के गाइडेंस लो। बिना गाइडेंस के आपका आरटी नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिना गाइडेंस के आपका आरटी नहीं होगा। तो जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखा, ठीक है, उसमें थोड़े बहुत जो शॉर्ट कमिंग्स थे, उसको मैंने बुक से पढ़ के, सिलेबस से पढ़ के, या फिर इधर उधर पायलट से पूछ के, जो भी मेरे को शॉर्टफॉल मिला या जो भी मेरे को कमी मिले, मैंने उसमें ऐड ऑन करके आपको पास कर रहा हूं। जब आप भी आरटी पास कर लोगे, आप अपने यंगर्स को ऐसे ही पढ़ाओगे। तो जनरेशन बाय जनरेशन आरटी का सिलेबस ट्रांसफर हो रहा है, एग्जाम पैटर्न ट्रांसफर हो रहा है। किसी भी बुक में कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आई विल सजेस्ट, अगर आपको आरटी करनी है, whether you can join mine institution, whether you can join anyone, कहीं भी किसी भी आरटी के ट्यूटर को पकड़ो, प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर आप आरटी का प्रिपेयर किए बिना ये सोचोगे कि आरटी का एग्जाम हो जाएगा कोई बुक पढ़ के, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। फॉर योर हेल्प, इन माय यूट्यूब चैनल, मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रखा है, अ कंप्लीट सेशन ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर इज अवेलेबल, ठीक है। सो इफ यू आर दैट मच proficient, if you are that much confident on you, you can have that recorded section and you can prepare for yourself. But I'll tell honest, किसी का गाइडेंस जरूर लो, ठीक है। So it is up to you if you have filled the form or if you want to clear the RT 2-3 महीने के अंदर, जब तक मैं डब्ल्यूपीसी का है, तब तक आप अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर लो और एग्जाम एक बार डब्ल्यूपीसी का पैटर्न देके देख लो, ताकि कल को जब डीजीसी भी कोई चेंज लाएगा तो कुछ ना कुछ तो रिजेम्बलेंस रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा तो बाद का बात देख लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सो फीस फॉर द क्लासेज इज 4500, 1 महीने का टाइम, रात में डेली 9 से 11, ठीक है, नो सैटरडे नो संडेज। डन? एनी अदर Yes, sir. डाउट फ्रॉम एनीवन साइड? कुछ और डाउट? No, sir. ना यू कैन से कि सर एग्जाम तो 7 अप्रैल से है, 25 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट करने, क्लास स्टार्ट करने की क्या जरूरत है? बिकॉज ऑफ होली, ठीक है, आपका होली का जो फेस्टिवल आएगा 5 to 7 डेज दैट विल टेक कंप्लीटली, ठीक है। 1-2 दिन होली खेलोगे, 2-3 दिन उसका यू कैन से हैंगओवर चढ़ा रहेगा, ठीक है, होली का हैंगओवर चढ़ा रहेगा। सो यू कैन स्पेंड सम ऑफ द टाइम अलोंग विद द होली, 2 दिन अप डाउन। तो वहां पे जो आपका गैप आएगा उसको फिल करने के लिए मैंने थोड़ा सा पहले क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है, सो दैट वी कैन कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, ठीक है। नो रिस्क नथिंग, टाइम्स इज वेरी प्रीशियस फॉर अस, अभी तक के लिए तो फिलहाल, क्योंकि डब्ल्यूपीसी के रहते रहते आरटी क्लियर हो जाएगा, सिलेबस समझा हुआ है, सिलेबस इजी है, क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं, बहुत सारे इजी पोर्शंस हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे डीजीसी के हाथ में आएगा तो टफ होता जा सकता है, ठीक है, और आई कैन नॉट श्योर कि वो क्या पैटर्न लाएंगे, क्या एग्जामिनेशन लाएंगे, ठीक है। So it is up to you. If you want to join, you can ping me through WhatsApp. ठीक है, fees is 4500. You can simply pay through the payment mode asking me. मैं आपको बताऊंगा कैसे पेमेंट करना है, and you can go for the complete 1 month preparation plan. ठीक है, एग्जाम को अप्लाई करने का टाइम आपके पास अभी 4 दिन है, ठीक है। 1 मार्च तक यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, सरल संचार के थ्रू अप्लाई होता है। इफ यू नीड गाइडेंस डू लेट मी नो, मैं आपको गाइड करूंगा। मुंबई सेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। Done? Any other doubt from your side? Any other query? Anything? No, sir. ठीक है। So
दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आरटी। इससे ज्यादा तो आरटी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके। सो फॉर नाउ आई थिंक दिस मच इज इनफ। ठीक है, फॉर द इंट्रोडक्शन दिस मच इज गुड इनफ। 2-3 दिन तक अब ऐसे ही 2-3 नए कैंडिडेट आएंगे, उनका हम लोग इंट्रोडक्शन, उनका डेमो, ये सब इनिशिएट करेंगे। प्लस वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि बिफोर पेइंग द फीस यू कैन अंडरस्टैंड the lecture mode, you can understand the pronunciation that I am using, you can understand the pace that I am having in my communication, you can understand the type of communication I am following। तब आपको सब कुछ सेटिस्फैक्टरी रहो, देन यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। अदरवाइज आपके मन में रहेगा पैसा ले लिया सर का, बाल तो समझ में आ ही नहीं रहा है, या सर जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो वाई टू रिग्रेट लेटर। टिल द टाइम यू कैन स्पेंड टिल 1 मार्च, 4 दिन 5 दिन लेक्चर अटेंड करो, गेट योर सेटिस्फैक्शन अप टू योर नेम। ठीक है, उसके बाद यू कैन पे द फीस एंड गो फॉर अ कंप्लीट RTR प्रिपरेटरी प्लान। ठीक है, सो Sir. let me then let me close the session for today here only. You all three were there while I was explaining part 1 and part 2, so I don't think कि आपको कहीं पे कोई डाउट रहा होगा। अगर अभी भी किसी भी टाइप का डाउट है, किसी भी टाइप का क्वेरी, यू कैन आस्क हियर, किसी भी टाइप का, कुछ भी, सिली से सिली, मजाक से मजाक, बोलो, डू लेट मी नो। बी क्लियर अबाउट ऑल द पैटर्न, प्रैक्टिसेस एंड प्लान टाइप। एनीथिंग? No, sir. ठीक है, होता है कुछ लोग अभी क्या है ना, कि जैसे कुछ लोग क्वेरी में पूछ सकते हैं सर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं क्या? ठीक, यस आते हैं। कहाँ से बनाएंगे इतने सारे क्वेश्चन? साल में उनको 6 महीने एग्जाम कंडक्ट करनी है, ठीक है, और ऑलमोस्ट वो 180 डेज तो एग्जाम कंडक्ट करते ही रहते हैं बेचारे, तो कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन बना के लाएंगे वो लोग? सो अगर आपको मन में लगता है कि सर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, यस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, सब कुछ हो रहता है। सो RTR इज इजी। ठीक है, द मेन लैग, क्यों रिजल्ट कम होता है? आपके पास ऐसा डाउट हो सकता है कि सर आप जब बता रहे हो कि RT इजी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, 1 महीना काफी है, रिजल्ट इतना कम क्यों? ठीक है, द बेसिक क्वेश्चन यू कैन हैव, ठीक है, बीइंग एन एविएटर, बीइंग एन AME कैंडिडेट, यू कैन आस्क कि रिजल्ट इतना कम क्यों? फिर जब सब कुछ इजी है तो रिजल्ट कम का है? Why? Because people are lapsing with their practices। आप प्रैक्टिस छोड़ोगे, रिजल्ट आपसे दूर चला जाएगा। ट्रस्ट मी, किसी भी टाइप का इंटेलिजेंस काम नहीं करता है इधर कि मुझे आता है और कयामत की रात में मैं परफॉर्म कर लूंगा। नो, ठीक है, इस टाइप का चीज इधर काम नहीं करेगा कि 1 महीने तक मैं आंसर रटता रहा और सोचूंगा कि एग्जाम में जैसे ही बैठूंगा मैं आंसर कर पाऊंगा। इज दैट गोइंग टू बी हैपन? नो। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर आपसे आंसर नहीं हो पा रहा है, आपसे एग्जाम में भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, प्राइम कंसर्न। द नेक्स्ट कंसर्न इज, जैसे ही आपके सामने एक एग्जामिनर आएगा, ठीक है, द मेन थिंग इज फियर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर माई इंट्रोडक्शन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड क्लियर्ड वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन इंडिया। देन यू कैन आस्क, दैट इज SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू। जितने भी आर्म फोर्सेज होते हैं, देयर आर आर्म फोर्सेज इंटरव्यूज ऑफ 5 days, SSB। ठीक है, आई हैड क्लियर्ड दैट वन एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई हैड क्लियर्ड द SSB। ठीक है, 5 दिन का इंटरव्यू, ठीक है, टफेस्ट, उससे ज्यादा टफ नहीं होता है कोई सा भी इंटरव्यू इन इंडिया। सो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड पास दैट वन। ठीक है, 2 साल से तो मैं RT पढ़ा रहा हूं, सो आई एम वेरी गुड इन इंटरेक्शन कोऑर्डिनेशन। उससे पहले भी मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था। Still, whenever I have heard about interview, whenever I had heard about any kind of assessment, whenever I have heard about any kind of examination, मेरा बॉडी पूरा वार्म हो जाता है, मेरा फेस ऐसा गर्म होने लगता है, मेरे भी पांव कांपते हैं। ठीक है, सो दिस इज नर्वसनेस एंड दिस इज नेचुरल। वो आपके अंदर रहेगा डेफिनेटली। उससे फाइट करने के लिए अपने पास क्या टूल है? प्रैक्टिस। आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा रहेगा कि नर्वसनेस आप उसको कवर अप कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप नई नई गाड़ी सीखते हो तो आपका पूरा का पूरा हाथ रहेगा क्लच, एक्सेलरेटर, गियर, स्टीयरिंग। ठीक है, आप हर बार गियर को देख के गियर डाउन करते हो, स्टीयरिंग हमेशा देख के, रोड पे पूरा फोकस रहेगा। आफ्टर 2 or 3 months of ड्राइविंग
आप एक हाथ से ड्राइव करना शुरू कर देते हो, या ऑफनली यू लुक एट द गियर, कभी कभी देखोगे रोड पे आपका ध्यान कम रहेगा, गाना वाना सुनते हुए गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। व्हाई? बिकॉज यू डिड प्रैक्टिस फॉर 3 मंथ्स। तो जैसे ही आप 1 महीने प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी, आपका जो नर्वसनेस है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैंने आंसर रट लिया है, मुझे आंसर पता है, डायरेक्ट परफॉर्म करूंगा, आपसे नहीं होगा। बचपन में भी हम लोग जब स्कूल में डांस वगैरह करते थे तो रिहर्सल किया जाता था कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि पब्लिक के बीच में आने पे आपके पांव लड़खड़ा सकते हैं। सिमिलरली, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस हेयर, यू आपके भी पांव लड़खड़ाएंगे इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनेशन। हेयर ऑल्सो यू विल स्ट्रगल, ठीक है। सो गिव अ डेडिकेटेड 1 मंथ, ठीक है, डेली 2 आवर्स एटलीस्ट, you will have result definitely, no doubt, nothing is there to be havocked। कुछ टफ नहीं है, जो ये नहीं कर पाते हैं उनका फेलियर होना तो निश्चित है, ठीक है। सो नथिंग इज गोइंग टू बी हैवॉक्ड, आरटी का हैवॉक तोड़ो, ठीक है, बी फियरलेस, इट विल बी कम टू यू, डोंट वरी। आई हैड मेनी स्टूडेंट जिनका फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ, इवन मेरा खुद का सेकंड टाइम में क्लियर हुआ था, एंड आई हैड सरप्राइजेज विद द रिजल्ट। ऑलमोस्ट 8 तो कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ, ठीक है, एंड दे हैव बीन गेट कोर्स फ्रॉम माइन, ठीक है। सो डोंट बी फियर्ड, डू practice for a month, give a dedicated 1 month, result will be yours, trust me, ठीक है। Okay, sir. Okay then I am closing the session for today, ठीक है। We'll see you same time tomorrow 9 o'clock, ठीक है। मीटिंग लिंक्स has been dropped to WhatsApp, सेम मीटिंग लिंक रहेगा डेली थ्रू आउट अ मंथ, आज से लेके 1 महीने तक कंटिन्यूअस। यू कैन ज्वाइन द वीडियो डेली बाय दैट लिंक, ठीक है। So let me finish the syllabus, let me finish the introduction here only, ठीक है, not syllabus will initiate tomorrow। Let me finish this introduction section here, this will be demo for many, and for you it will be a introductory classes। chalo, seeing you tomorrow, then bye bye for today, ठीक है। Bye, sir. Yes, sir. Thank you. chalo okay, thank you for joining, we'll see you tomorrow। Thank you, sir.